Good morning, students. Welcome back to your EVS class. Students, in today's class, we are going to start with the new chapter from your EVS textbook. The chapter number is 18 and the title of this chapter is Save the Earth. So, in this chapter, we are going to discuss about the resources of natural resources that we get from the nature. Okay, and then how to take care of these natural resources, and then we'll learn about the precautionary measures to save the planet Earth from the pollution, okay, global warming. All these things we are going to discuss under this chapter. इस चैप्टर में हम आज सीखेंगे कि हमें नेचर से क्या क्या रिसोर्सेस मिले हैं या क्या क्या संपत्ति हमें रिसोर्सेस मतलब नेचर से हमें क्या क्या संपत्ति मिली है, कौन सी चीज़ें हमें नेचर से गिफ्ट के तौर पर मिले, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. फिर हम सीखेंगे कि इन जो नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिले हैं उनको कैसे सेव करें या उनको कैसे रिजर्व करें, उनका जतन कैसे करें, और हमारी जो अर्थ है उसको पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. We live on planet Earth. So you all must be aware that we live on the planet Earth. Okay, what is the name of our planet? The name of our planet is Earth. We get everything for our life from Mother Earth. So like our mother who nurtures us from our birth till we grow up, है ना, our mother takes care of everything whatever we need, है ना. Like same way Mother Earth nurtures all of us. It gives us so many things which are necessary for us to live on the earth. जैसे हमारी माँ होती है जो हमारे बचपन से, हमारे पैदा होने से हमारे बड़े होने तक हमारी पूरी देखभाल करती है. हमें जो जो नेसेसरी चीज़ें होती है, जो जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है, वो सबका ध्यान हमारी माँ रखती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो माँ जैसा काम कौन करता है? धरती, अर्थ भी जो हम धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, उन सब की देखभाल कौन करता है? हमारा नेचर, मतलब हमारी अर्थ करती है. हमें जो जो चाहिए जीवन के लिए, है ना, वो सारी की चीज़ें हमें कहाँ से उपलब्ध होती है? अर्थ से, नेचर से उपलब्ध होती है. जैसे पानी ले लो, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए. टू ब्रीथ वी नीड ऑक्सीजन. ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम द earth. That is why we are saying, we are calling the earth as Mother Earth. We should save our planet Earth to ensure that our future generations get a safe environment. So we all get necessary things to live from the earth, like air, water, natural resources such as petrol, diesel, gases, है ना, plants. All these things we get from the Mother Earth, which are necessary for us to live. And if we start wasting all these natural resources, if we don't care, if we don't take care of our mother nature, if we don't take care of the nature on the earth, then what will happen? Then next generations will suffer. They will not get all these things. अगर हमारी जो मदर अर्थ ने हमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, पानी हो गया, हवा हो गया, प्लांट्स हो गए, या जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, या जैसे आप बोल सकते हो, ये सारी चीज़ों को अगर हमने वेस्ट करना शुरू कर दिया, इनकी देखभाल नहीं की अच्छे से, तो क्या होगा? आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स जो है, उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी. और उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट अभी हम वेस्ट कर रहे हैं, बट इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट किनको, इन सब चीज़ों के परिणाम किनको भुगतने पड़ेंगे? हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनको भुगतने पड़ेंगे. We can save Earth by saving trees, natural vegetation, natural resources, water and electricity.
If we want to save the earth, we should start saving the trees. We should start saving the natural resources, and we should save water and electricity as well if we want to save the earth as well as the life on the earth. अगर हमें अर्थ को बचाना है, धरती को बचाना है, और धरती बचेगी तभी तो हम बचेंगे. हाँ, धरती नहीं रहेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे क्या? हमारी लाइफ इस नेचर की वजह से है, धरती की वजह से. अगर धरती ही नहीं सुरक्षित रहेगी, धरती ही नहीं सेफ रहेगी, तो हम सब की लाइफ भी खतरे में आ जाएगी. तो हमें धरती को सेव करने के लिए पहले तो ट्रीज़ को बचाना है, पेड़ों को बचाना है कटने से. फिर जो जो नेचुरल वेजिटेशन है, जंगल है, जो नेचुरल सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, उनको बचाना है. ठीक है. फिर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हवा, पानी, पेट्रोल, डीजल, इन सब को बचाना है. वाटर को बचाना है, पानी बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है. We can take measures for controlling environmental pollution and global warming. So we should take precautionary measures to control the environmental pollutions and global warming, because these things hamper the life on the earth. These things hamper the nature. पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन चीज़ों से क्या होता है, जो नेचर है, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो सारी क्या होती है, हैम्पर होती है. उसके ऊपर बैड इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स देयर इज़ अ राइज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ्स atmosphere because of the emission of the pollutants, gas emission, and emission of the excessive emission of the carbon dioxide. And due to this, what happens? Due to the global warming, there is a changes in the weather. There are changes in the weather and seasons. अगर ये ग्लोबल वार्मिंग देखो तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो धरती का तापमान है वो बढ़ना. और धरती का तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका इफ़ेक्ट किस पे होगा? उसका इफ़ेक्ट होगा वेदर पे, सीजन्स पे, जो ऋतुएं आती है उस पर इफ़ेक्ट होगा. और इन सब का सीजन्स चेंज हो गए तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी होगा, लाइफ साइकिल के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स है, नॉर्थ पोल के जो ग्लेशियर्स है, साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है, दे आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. एंड इफ़ दीज ग्लेशियर्स मेल्ट्स, the sea level rises, and because of the rise in the sea level, the life along the side of the seashore or seaside life gets affected because of the rise in the sea level. अगर ग्लोबल वार्मिंग से जो नॉर्थ पोल के ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े जो बर्फीले पहाड़ है, वो अगर मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा? उससे समुंदर के पानी का लेवल बढ़ेगा. उससे समुंदर के पानी का लेवल बढ़ने से जो समुंदर किनारे जो लोग रहते हैं, वो उस समुंदर के जो पास में रहते हैं, उन लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी. उस वजह से वहाँ पे बाढ़ आ सकती है. तो ये सारे क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट है पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के. So what measures we can take to save the earth from global warming and pollution? Now we are going to discuss them. Okay? हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमारी अर्थ को पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, अब हम वो डिस्कस करेंगे. सेव ट्रीज. फर्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक to save our environment and to save our earth is we should save the trees. We should plant new trees. हमें नए पेड़ पौधे उगाने चाहिए. The schemes afforestation and reforestation should be wholeheartedly supported. Schemes afforestation and रिफॉरेस्टेशन मतलब अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन मतलब जो पहले के जो पुराने फॉरेस्ट है जिनको तबाह किया गया, उनको फिर से रिस्टोर करना, उनको फिर से खड़ा करना, वहाँ पे फिर से प्लांटेशन करना, नए नए ट्रीज़ उगाना. जो फॉरेस्ट पुराने फॉरेस्ट जिनको काट दिया गया, जंगलों को काटा गया है, तो उन फॉरेस्ट को फिर से बढ़ाना, वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे लगाना. इन सब चीज़ों से क्या होगा, हम मदर अर्थ को सेव कर सकते हैं, है ना.
Save natural vegetation. Now save natural vegetation. Next step is save natural vegetation. We should use less paper. तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड यूज़ लेस पेपर. कम से कम कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए. वी कैन मेक arrangements for recycling of used paper and other natural products. So we can use less paper as well as we can recycle the used paper and we can recycle the other natural products. तो आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है पेपर वेस्ट करेंगे, एक पेपर पे लिखा तो नेक्स्ट पेपर ब्लैंक छोड़ देंगे, पेज ब्लैंक, और उससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेस ऑफ पेपर वी नीड टू कट दैट लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़. अगर हम जितना ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे उसका मतलब है उतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ कटेंगे. बिकॉज वी गेट पेपर फ्रॉम दी ट्रीज़. हमें पेपर कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ से मिलता है. पेड़ काट कर ही तो पेपर बनाते हैं. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे. तो हमें अर्थ को सेव करने के लिए कम से कम पेपर यूज़ करना है, और जो यूज़ पेपर है उसको क्या करना है, रिसाइकल करना है. मतलब उसको प्रोसेस करके फिर से दोबारा से इस्तेमाल हम कर सकते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज कवर एंड होल्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फर्मली. सो वाई वी नीड टू सेव दिस ट्रीज? वाई वी नीड टू सेव ट्रीज टू सेव द अर्थ? हमें धरती को बचाने के लिए पेड़ों को क्यों बचाना है? क्या रीज़न है कि पेड़ों को बचाने से हम धरती को बचा सकते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. ये जो प्लांट्स है, ये जो ट्रीज़ है, ये क्या करते हैं, पहले तो सबका पालन पोषण करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स, मतलब जो वेजिटेरियन ही खाना खाते हो, दे ऑल नर्चर ऑन दिस प्लांट्स, है ना. उनको सारा खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स या ट्रीज से मिलता है. ऊपर से ये जो प्लांट्स और ट्रीज है, दे गिव अस ऑक्सीजन, है ना. हमारा जो मेन थिंग है, द मेन थिंग विच वी नीड टू सर्वाइव, टू लिव, इज़ द एयर, इज़ द ऑक्सीजन दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एंड ऑल्सो दीज प्लांट्स क्लीन आवर एयर. अगर एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इट इज़ बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट इनहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सेल ऑक्सीजन. प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है उसको क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, मतलब उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बदले हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन. इस वजह से हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा, है ना. और जो एनिमल लाइफ है वो भी सेव हो रही है प्लांट्स की वजह से. ऊपर से प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज जो है ज़मीन को पकड़ के रखते हैं. उनके जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, दे होल्ड द सॉइल टाइटली फर्मली, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन अवॉइड द फ्लड्स, है ना. अगर प्लांट्स जो है, प्लांट्स के रूट्स जो है वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर अच्छे से धसे हुए होते हैं, उस वजह से क्या होता है, वो मिट्टी जकड़ी हुई होती है उन रूट्स में, उन प्लांट्स के रूट्स में. और जब भी कई फ्लड्स आते हैं, कुछ आता है, तो वहाँ की ज़मीन पानी के साथ बह नहीं जाने का बहुत बड़ा काम ये प्लांट्स करते हैं. नेक्स्ट, सेव नेचुरल रिसोर्सेज. वी ऑल नो दैट the supply of natural resources such as minerals, stones, coal, oil, etc. are limited. So we all know that the natural resources like minerals, stones, है ना, coal, oil, their stock is limited. जैसे natural resources के तौर पर मान लो minerals, स्टोन्स या मेटल्स ले लो, आयरन, गोल्ड, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोल मतलब कोयला, ऑयल जो हमें पेट्रोल, डीजल, ये सारे ऑयल्स में आते हैं. तो ये सारा हमें नेचर से मिलता है, तो इसीलिए हमें इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. और ये जो है लिमिटेड स्टॉक है, बिकॉज टू जनरेट ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर. अगर आपको क्या बोलते हैं, ये जो मिनरल्स है, स्टोन्स है, पेट्रोल, डीजल है, ये सब बनाने के लिए 1000 साल से भी ऊपर का समय लगता है, तब जाके ये रिसोर्सेज
बनते हैं, और अगर हम इनको इतने जल्दी यूज़ करेंगे, इतने जल्दी वेस्ट करेंगे, तो देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ सच थिंग्स फ्रॉम द नेचर, बिकॉज वी आर वेस्टिंग इट इन द अबेंडेंस। हम इसको ज़्यादा मात्रा में वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। वी कैन save electricity by putting off the lights when not in use. So the one more step which we can follow to save the earth, that we should save the electricity. If we don't need, we can put off the lights, we can put off the fans, we can switch off the fans if they are not in use. In this way we can save the electricity, and same way we can save the earth. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं तो इसी का मतलब है हम एक स्टेप ले रहे हैं हमारी अर्थ को बचाने की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है। टू मेक electricity we need to build dams, and the water which is stored in the dam, that is being used to generate the electricity. And if we are wasting the electricity, that means we are wasting the water, और वाटर वेस्टेज होगा तो ऊपर से वाटर वेस्टेज होने के कारण फिर से मदर अर्थ का नेचर हैम्पर हो रहा है, जो अर्थ है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। और वी कैन स्विच टू फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग नाइट्स. If it is not necessary, we should not switch on the air conditioners. Instead of using air conditioners, we can use the fans, because as compared to fans, air conditioners consume more electricity. अगर हमें ज़रूरत नहीं है रात के समय तो हम एयर कंडीशनर्स के बजाय फैंस का इस्तेमाल करेंगे. फैंस का इस्तेमाल करने से क्या होता है, कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो हम इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं. एयर कंडीशनर्स फैन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हम एयर कंडीशनर्स की जगह फ़ैन इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज़ कार पूल्स टू रिड्यूस यूज़ ऑफ फ्यूल. इफ़ टू पीपल आर गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन, देन यू कैन शेयर योर कार, है ना. जैसे कोई 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जो सेम जगह ऑफिस जाते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कारपूल कर सकते हैं. मतलब एक दिन एक आदमी अपनी कार लेके जाएगा और बाकी सारे लोग उसके साथ उसकी कार में शेयर करेंगे, है ना. तो दूसरे दिन दूसरा अपनी कार लेके जाएगा, बाकी सारे लोग उसी के साथ चले जाएंगे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 डिफरेंट कार्स, दीज 3 पीपल कैन take 1 car to go to the office. This is called as the carpool, and because of the carpool they can save the fuel, है ना. and it is helping us to preserve those natural resources. अगर हम कार शेयरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्यूल बचाएंगे. उस वजह से क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनका वेस्टेज होने से हम बचा सकते हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेव वाटर. Water is life. It is basic necessity for every living things on this planet. So as we know that water is alive, because everything which is every living thing on earth needs water to live. If you take plants, if you take animals, they all need water to survive, है ना. हम सब जो लिविंग थिंग्स है अर्थ के ऊपर, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. यस और नो? यस. वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इनटू ओपन वाटर बॉडीज़. सो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज़. जैसे रिवर है, नदी है, तालाब है, इनके अंदर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इनमें हमें कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. ओके, इससे क्या होगा, नहीं तो वाटर पोल्यूशन होगा. एट होम वी कैन यूज़ वाटर कॉशियसली एंड एंश्योर दैट इट डजंट get wasted. So at home also we should use water cautiously. We should not waste the water unnecessarily. Okay, we should minimize the use of water at home as well. Instead of using the shower for taking bath, you can use a bucket and mug. In this way you can stop the wastage of water, है ना. And while brushing the teeth, you can ensure that the tap is closed. You should not keep the tap running while brushing the
teeth and you cannot let the water get wasted. अगर आपको पानी बचाना है तो आपको घर से शुरुआत करनी है. आपको अपने घर पर भी पानी वेस्टेज बंद करना है. जैसे कि आपको शॉवर के नीचे नहाने में मज़ा आता होगा, पर इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी वेस्ट होता है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शॉवर आप क्या करोगे, बकेट और मग से नहाओगे. इससे पानी की बचत होगी. फिर ब्रश करते समय कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का नल खुला ही छोड़ के ब्रश करते हैं, उससे भी पानी वेस्ट होता है. तो आप क्या करोगे, जब ज़रूरत है तभी पानी का नल खोलोगे और जब ज़रूरत नहीं है तब पानी का नल बंद कर दोगे. इस वजह से आप वाटर सेव करोगे. Remember, a large number of people are still deprived of safe drinking water. Here we get water in abundance to drink, to take bath, to wash clothes. But in some remote areas, in some countries, there are people who cannot afford or who cannot get normal सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर. हमें हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. हमें पता नहीं चलता है कि दुनिया में कहीं किसी जगह ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको डेली जो पीने का पानी है वो भी ठीक से नहीं मिलता है. वो लोगों को पीने का पानी सेफ़ मतलब साफ़ सुथरा शुद्ध पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है. तो उन लोगों के बारे में सोचकर हमें वाटर सेव करने की हैबिट डालनी चाहिए. ठीक है. Be the change that you want to see in this world. So if you want to change the world or if you want to see some changes in the world, you should start following that change in your daily life. अगर आपको दुनिया में कोई चेंज लाना है, कोई परिवर्तन लाना है, तो पहले वो परिवर्तन आपको अपने आप में खुद में आत्मसात करना चाहिए. वो परिवर्तन, वो चेंज, वो बदलाव आपने अपने से शुरू करना चाहिए, तब जाके आप बाकी जगहों पर बदलाव ला सकते हो. Save environment from pollution. Now we need to save the environment from pollution, and to save the environment from pollution, what things we can follow, let's see over here. Don't pollute water by throwing the waste into the water bodies. If we throw the waste and garbage into the water bodies, then that water will get polluted and it will be of no use, है ना. अगर हम पानी गंदा करेंगे या पानी में हम गंदगी फैलाएंगे, कूड़ा कचरा डालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को पोल्यूट कर रहे, उस पानी को गंदा बना रहे. ठीक है. तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए. मिनिमाइज एयर पोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशंस. ऑल्सो we should not pollute the air by emitting the carbon dioxide and harmful gases into the air. हमें एयर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करना चाहिए. हम गाड़ियों से जो धुआं फेंकते हैं, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. तो ये भी हमें कम करना चाहिए. Use less cars, less machines, less electricity and less plastic goods. So to save our environment from the pollution, what we should do, we should use less cars, less machines, less electricity and less plastic. अगर हमें environment को pollution से बचाना है तो हमें पहले तो कम से कम कार यूज़ करनी चाहिए, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हवा में पोल्यूशन फैलेगा, उतना ज़्यादा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा. जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनेंगी, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, उतना ज़्यादा हवा में पोल्यूशन होगा, क्योंकि उनके जो धुआं निकलता है चिमनी से, उससे फिर से एयर पोल्यूशन बढ़ेगा. कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के तौर पर निकलता है. केमिकल्स जो निकलते हैं गंदे, वो सारे केमिकल्स वो जो वाटर वेस्ट होता है वो सारा हमारी जो नदियाँ हैं, तालाब है, उनमें छोड़ देते. तो हमारी नदियाँ, तालाब, वहाँ पे भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है इन सब वजह से. इलेक्ट्रिसिटी हम कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस वजह से हम पानी बचा सकते. और प्लास्टिक इज़ क्रिएटिंग दी लॉट ऑफ लैंड पोल्यूशन. प्लास्टिक की वजह से क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का कूड़ा है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू गेट डिकम्पोज. जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है. जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, आफ्टर 10-15 days इट गेट्स डिकेड और इट गेट्स डिकम्पोज्ड इन द
सॉइल, हमारे जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जीव जंतु होते हैं ज़मीन के अंदर, वो क्या करते हैं, जैसे हरे पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, उन सब का विघटन करती है, उन सब को डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज करके क्या होता है, वो फिर मिट्टी में घुल जाता है। बट ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो ये जो माइक्रोब्स है, दे कैन नॉट डिकम्पोज प्लास्टिक. It takes more than 100 years to decompose the plastic. So plastic can stay like that for 100 years. ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो कूड़ा है, ये इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होता है, इसको 100 साल से भी ऊपर का समय लगता है. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए. एंड grow organic foods. So we should use organic food and we should do the organic farming. Organic farming helps us to maintain the fertility of the land, okay, and it also saves the earth from the harmful chemicals, harmful pesticides. Organic farming क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको यूज़ नहीं करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, जो ज़मीन है जिसकी फर्टिलिटी है, उपजाऊ ज़मीन बोलते हैं ना, वो उपजाऊपना ज़मीन का बहुत साल तक टिका रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, क्योंकि उसमें हम जो भी है नेचुरल खाद डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हैं, या हम केमिकल वाले मैन्योर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल यानी नैसर्गिक खाद डाल रहे हैं. तो उस वजह से जो है केमिकल्स नहीं जा रहे ज़मीन के अंदर, और उस वजह से लैंड पोल्यूशन नहीं हो रहा है, और उस वजह से क्या बोलते हैं, ज़मीन की उपजाऊपना जो है वो भी अच्छे से बाधित रहेगी. Save earth from global warming. Now we should save the earth from global warming. So what is global warming? Global warming means rise in the earth's atmospheric temperature due to the emission of the हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस. हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है. किस वजह से? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा हवा में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जो हार्मफुल गैसेस हैं उन वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है. इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्रीज शुड रेगुलरली चेक that their machines are emitting smoke within permissible limits. So there should be some regulation on the emission of the smoke by these industries. So they should control the emission of the smoke and carbon dioxides. All these industries should regulate कि उनके यहाँ से ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ये उन्होंने खुद होके रेगुलेट करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए. जो उनके फैक्ट्री से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उन सबको कंट्रोल में रखना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा धुआं उन्होंने नहीं फेंकना है, उन्होंने कम से कम धुआं जनरेट करना है, स्मोक जनरेट करना है, जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो. Ensure that wastes are discharged only after the treatment. So जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो केमिकल्स है, या जो सीवेज वाटर है, जो गटर का पानी होता है, या हमारे घरों से जो बाथरूम का पानी निकलता है, उन सब पानी को हम डायरेक्टली नदी के पानी में नहीं छोड़ना चाहिए या तालाब के पानी में नहीं छोड़ना चाहिए. उनको वहाँ पर डिस्चार्ज करने से पहले, छोड़ने से पहले उनके ऊपर ट्रीटमेंट करो, उनको पहले क्लीन करो. Then we can discharge that water into the natural water bodies. Okay, you should not throw that polluted water or industrial waste directly into the natural water resources. Before discharging them into the natural water resources, these should be treated, these should be क्लीन फ्रॉम दी पोल्यूटेंट्स. अगर आप इनको क्लीन करोगे, पोल्यूटेंट्स उनमें से निकाल दोगे, तभी आपको उन पानी को, उस गंदगी को आप जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है उनमें छोड़ सकते हो. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी. टिल देन थैंक यू. हैव अ नाइस डे.